Hello, hi everyone. A very good afternoon to all of you. And this is Neha, your master teacher of economics, and I warmly welcome you all to Vedanta Commerce. How are you guys? All good? Very nice. So class 12th economics. Maharashtra both sessions are being launched. Yes, the batches are going to be starting from October 11th, right? So, jaldi se jao, register yourself for this. And we have something very, very special for you. वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशंस टेस्ट ठीक है VSAT. So it is eligibility grades are from class 4th to 13th. ठीक है, it's an online subjective test. Scholarship मिलेगी 15 to 100%. Yes, registration is free. Go ahead and register yourself. Sunday 7 p.m. and Wednesdays 8 p.m. ये टेस्ट होगा आपका. So yes, हमारा वेदांतु का फेस्ट इज ऑन 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज मिनिमम 50% ऑफ ऑन ऑल कोर्सेज यस सो आपको रिड्यूस प्राइस पे क्लास 12 यू आर गेटिंग अ क्रैश कोर्स फॉर 55% ऑफ एट 4500 rupees only right पूरा क्लास 12 का टर्म 1 will be completed for this 4500 rupees. So go ahead, what are you waiting for? Register yourself, everyone. And what's the coupon code? Coupon code है अपना NRPRO. Link to this will always be there in the description box. Go ahead and जल्दी से join करो इसको. Do not forget जितने भी बच्चे आए हैं जल्दी से क्या करना पड़ता बेटा अटेंडेंस मार्क कर दो क्लास की कहाँ गए मैम का पेन नहीं चल रहा या okay so don't forget to like the video, share it with all your friends and subscribe to the channel. So jaldi se attendance mark karo. Show me some love. And yes, we are here with your new chapter Indian Economic Development. ठीक है Indian Economic Development में Human Capital Formation we are going to be starting today. How people become resources. Human capital, right? So human capital मतलब human beings क्या हो रहे हैं they are going to be used as a capital or as a resource. ठीक है तो how can we convert a normal human being to a resource? This chapter is going to be telling us all about that. ठीक है so today learning outcomes are going to be physical capital क्या होता है we'll start with physical then human capital. After that, human capital formation, importance of human capital formation, and then sources of your human capital formation we are going to be covering today. Clear? Okay. Physical capital. Physical मतलब जो आपको दिख रहा है, which you can touch, which you can feel. Physical, anything. So all those inputs, all those raw materials which are required मतलब एक प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के लिए to take a production further whatever thing is required will be categorized as your physical capital. ठीक है मतलब एक आपने क्लॉथ बनाना है मतलब शर्ट बनानी है ठीक है हाउ कैन यू मेक दैट हमें रॉ मटेरियल चाहिए हमें कॉटन चाहिए तो दैट इज गोइंग टू बी योर फिजिकल कैपिटल. एक फैक्ट्री चाहिए जहाँ पर बिल्डिंग और मशीनरीज वगैरह होनी चाहिए यस ऑल दोज थिंग्स दैट विल बी टर्म्ड एज योर फिजिकल कैपिटल. फाइन आई थिंक नो डाउट शुड बी हियर इन फिजिकल कैपिटल एटलीस्ट. तो फिजिकल कैपिटल में क्या क्या आ जाता है फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल बोथ आर गोइंग टू बी देयर. फिक्स्ड कैपिटल में आपके मशीनरीज आ जाएंगी जनरेटर्स टर्बाइंस कंप्यूटर्स दीज आर योर एसेट्स अकाउंटिंग टर्म में राइट ऑल दीज आर गोइंग टू बी अंडर योर फिक्स्ड कैपिटल. वर्किंग कैपिटल क्या हो जाता है रॉ मटेरियल्स या फिर मनी इन हैंड ये आपके वर्किंग कैपिटल के कैटेगरी में आ जाने वाला है. ओके
So that was all about our physical capital. But physical capital के बारे में one or two odd things, let's understand that. तो physical capital, if we speak about, it is tangible. ठीक है, tangible है that, and it can be sold in the market also. This is the first feature of your physical capital. Second क्या होने वाला है? It will go through some depreciation. Physical capital is going to go through some depreciation. Depreciation with the passage of time. It's very easily mobile between the countries. Import export मशीनरीज का, फिजिकल कैपिटल का बहुत इजीली होता है. Okay. Physical capital can be separated from the owner. Physical capital का एक owner होता है, right? तो physical capital can be separated from its owner. Okay. And it can be built through imports. आपको physical capital चाहिए, you can just import it from abroad, right? Machineries, raw material, इन सब चीजों में these things are very very easy. Okay. Now let's come to human capital. Humans as capital. ठीक है, ये क्या होता है? So human capital, when I am telling you, I am referring to that एक human being में मैंने कुछ डाल रही हूँ. What am I going to put in that human being to make it useful, to make it like a capital, to make it like a resource? I am going to put some skills. नॉर्मल इंसान उठाया, एजुकेशन करनी पड़ेगी. What are you right now? आप लोग क्या हो रहे हो? You are being converted to human capital so that you all are useful to any company, or if you all are opening a business, you all are like some resource. ठीक है, तो एजुकेशन, स्किल्स डालनी पड़ती है, ability, expertise, knowledge in a nation at a point of time. ह्यूमन कैपिटल के ये मीनिंग है कि एक कंट्री में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब कि ये क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है. एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, व्हाट इज द लेवल ऑफ स्किल्स, व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सपर्टीज. तो अगर ह्यूमन कैपिटल आपको बनाना है, आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा, राइट? उसकी एक्सपर्टीज लेवल को ठीक करना पड़ेगा, स्किल्स, एबिलिटी, हर चीज को क्या करना पड़ेगा? ठीक करना पड़ेगा. So we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. लाइक डॉक्टर्स, मेकअप डॉक्टर्स ही तो ट्रेन करते हैं ना. आप जैसे सीए बनने वाले हो, आप किसके अंडर ट्रेनिंग लोगे? किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर ट्रेनिंग लोगे. ठीक है, आईसीएआई से जाकर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस लोगे. सो इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड. मोर ह्यूमन कैपिटल कैन बी फॉर्म्ड बाय ह्यूमन कैपिटल्स ओनली. ठीक है, नाउ हाउ इज दिस फॉर्म्ड? ह्यूमन कैपिटल बनने के तरीके, राइट? दादी माँ के नुस्खे, दैट हाउ डू यू मेक अप अ ह्यूमन कैपिटल. ओके, सो मीनिंग क्या है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का? तो अभी तक हमने कितने टर्म्स पढ़ लिए? फिजिकल कैपिटल वी स्टडीड ह्यूमन कैपिटल. नाउ वी आर स्टडीइंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, सो ह्यूमन कैपिटल की अगर वापस से बात करते हैं, इफ वी स्पीक अबाउट ह्यूमन कैपिटल, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट इट फ्रॉम क्या बोलते हैं, फिजिकल कैपिटल?
ह्यूमन कैपिटल आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, यू कैनॉट इंपोर्ट ह्यूमन कैपिटल, राइट? यू विल हैव टू मेक अप ह्यूमन कैपिटल थ्रू पॉलिसी फॉर्मुलेशंस। देन आपको क्या करना पड़ेगा? दीज आर इंटैंजिबल। आप बोलोगे मैम ह्यूमंस को तो टच कर सकते हो। बेटा ह्यूमंस को टच कर सकते हो, लाइक डॉक्टर उसकी स्किल को टच कर सकते हो? नहीं। उसकी एबिलिटी को कर सकते हो? नहीं। सो ह्यूमंस क्या है? ह्यूमन कैपिटल इज योर इनटैंजिबल एसेट, फिजिकल कैपिटल इज योर टैंजिबल एसेट्स। नाउ डेप्रिसिएशन can be reduced by continuously investing on human capital. Doctors, do they depreciate? नहीं यार, वो क्या करते हैं? अपनी स्किल्स को एनहांस कर रहे होते हैं। दे कीप ऑन स्टार्टिंग। टीचर्स, व्हाट डू? दे कीप ऑन स्टार्टिंग। स्किल्स को क्या कर रहे होते हैं? एनहांस कर रहे होते हैं। ठीक है। दे आर ऑल्सो मोबाइल बिटवीन कंट्रीज, बट अगेन नॉट दैट मोबाइल। वीजा लगता है और माइग्रेशन करना इज नॉट दैट मच इजी। ठीक है। नाउ ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर ऑल्सो। अब डॉक्टर और डॉक्टर की स्किल को अलग नहीं कर सकते। फिजिकल कैपिटल वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर, ह्यूमन कैपिटल कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स ओनर। ठीक है। तो अभी बनते कैसे हैं? लेट्स सी हाउ डू अ ह्यूमन कैपिटल इज मेड। हाउ इज अ ह्यूमन कैपिटल मेड? So the term human capital formation implies development of abilities and skills amongst the population of a country. हमें क्या डेवलप करना है? Abilities as well as skills डेवलप करनी है. So there has to be some तरीका, right, from which we are going to be developing this. So human capital formation, I can say it's a process of acquiring, increasing the number of persons who have skills, education, experience, which are very, very critical for any economic development, political development of a country. So हमें number of human beings, मतलब number of humans बढ़ाने हैं who are skilled, who can be treated as capital, who can be treated as assets. Got it? मतलब हमें सिर्फ population नहीं बढ़ानी है, हमें स्किलफुल बढ़ाना है लोगों का, लोगों के स्किल्स बढ़ाने, एक्सपर्टीज लेवल बढ़ाने हैं। ठीक है। व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? सो आप लोगों का क्या हो रहा है यहाँ बेटा? आप लोग ह्यूमन कैपिटल बन रहे हो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज एजुकेशन। ठीक है। सो एजुकेशन फैसिलिटीज यूज रिसोर्सेज इन द कंट्री। सो एजुकेशन फैसिलिटीज क्या होती हैं? दे आर यूजिंग अप सम रिसोर्सेज। ठीक है। सो रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने के लिए क्या है? यू विल हैव टू गो थ्रू इट। फिर कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ के लिए ऑल्सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? दिस इज बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज एजुकेटेड, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मीन्स उसको क्या आ रही है? स्किल्स आ रही है, अबिलिटी आ रही है, education is also being given to him. Now it is a known fact then that when a person is educated, they are more aware about population control, population growth in a country. They believe in family planning after they are educated enough. They know that smaller families के कितने benefit होते हैं. ठीक है। तो this is going to help our country in long run. Improves the quality of life. अभी quality of life कैसे improve होगी? If a person is educated, बताओ बेटा, how the loop is going to begin? Education से क्या मिलने वाला है? Job. Right? Good job लिखेंगे. Good job से handsome income. If you earn well, you improve on your quality of life. You improve on your standard of living. You know what is good for you. You know what to buy, क्या खरीदना चाहिए,
और न्यूट्रिशियस फूड क्या होता है, आपको क्या खाना चाहिए, ऑल दिस इज इम्प्रूव्ड. इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. नाउ दो चीजें आती हैं टू बिल्ड अप. व्हाट डू वी बिल्ड अप? हम दो चीजें क्या करते हैं, एजुकेशन एंड हेल्थ. ह्यूमन कैपिटल बढ़ाने के लिए हम एजुकेशन पे ध्यान देते हैं और उसकी हेल्थ पे ध्यान देते हैं. राइट, बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. एजुकेशन से क्या होगा, जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड ही विल बी एबल टू अफोर्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ. गुड हाइजीन ही विल बी एबल टू मेंटेन. हेल्थ, हेल्थ कंडीशंस अच्छी होंगी तो ही विल फॉल सिक लेस ऑफन. वो बीमार नहीं पड़ेगा, बीमार नहीं पड़ेगा तो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, हेल्थ अच्छी रहेगी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी. लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है मतलब एक बच्चा जब पैदा होता है, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, हाउ मच इज ही एक्सपेक्टेड टू लिव. ठीक है, दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी. ओके, तो ये इंप्रूव हो रही होती है. इफेक्टिव यूज ऑफ फिजिकल कैपिटल. नाउ फिजिकल कैपिटल अपने आप चलने लगते हैं क्या, मशीनरीज और वटेवर अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं? नहीं. अपने आप इन्वेंशन हो जाता है क्या इनका? नहीं. who all are required? Human capital is required. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल इज गोइंग टू मेक इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फिजिकल कैपिटल. ठीक है, फिजिकल कैपिटल को रिसोर्सफुली बनाना, रिसोर्सफुली उसको यूटिलाइज करना हैज टू बी डन ओनली एंड ओनली बाय whom? बाय ह्यूमन कैपिटल. सो इसके लिए हमें ह्यूमन कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा. नाउ लेट्स कम टू द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. अभी तक तो ह्यूमन कैपिटल कर रहे थे, इंपॉर्टेंस देख लिया, हर चीज देख लिया, बट व्हाट आर द सोर्सेज? हाउ आर यू गोइंग टू डेवलप ह्यूमन कैपिटल? नाउ तो इसके हैं 5 सोर्सेज. हाउ मेनी सोर्सेज आर देयर? 5. लेट मी राइट दैट फॉर यू. एजुकेशन, health, then on the job training, migration, information. ओके, तो क्या क्या हो गया? लेट्स राइट डाउन उसके वर्ड्स ताकि वी कैन मेक अप समथिंग एंड रिमेंबर इट, बिकॉज सोर्सेज आपको इंपॉर्टेंट है. दीज आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू विल हैव टू लर्न अप. एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन, इंफॉर्मेशन. आई होम कर दे, IHOME. ठीक है, आईफोन की जगह आई होम आ गया है. ओके, सो आई होम, इंफॉर्मेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड देन एजुकेशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विथ एजुकेशन फर्स्ट. एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. सो लेबर स्किल्स जो होती हैं, हमें क्या बढ़ानी है? लेबर स्किल्स. Labor skills are high of an educated person. ठीक है, तो इवन इफ कोई भी मतलब एक इंसान के आपको स्किल्स बढ़ानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? यू विल हैव टू स्पेंड मनी और स्पेंड और डू एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट? डू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन फॉर दैट पर्पस. ठीक है, so individual can invest in education so that their future standard of living is improved, they get a good job out of it. ठीक है, education confers to higher earning capacity, better social standing, pride होता है, whatever like
हम क्या कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को? आई एम सो एंड सो, यू टेल योर नेम एंड यू से आई एम अ डॉक्टर, यू टेल योर क्वालिफिकेशन, राइट? That's an education, that's a proud moment for you. So that is going to bring you that. Education is going to stimulate some innovations, and it is going to help you adapt to new technologies also. If someone is educated, अभी जैसे ये ऑनलाइन ऑफलाइन हो गया पूरा, क्लासेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट, है ना? तो अगर टीचर्स तो आर एजुकेटेड ऑफ कोर्स, अगर समवन इज नॉट एजुकेटेड, समवन इज वेरी रिलक्टेंट कि नया नहीं यार, न्यू टेक्नोलॉजी नहीं हो रहा, क्या हो जाएगा? आउटडेटेड, आउट ऑफ जॉब, right? So you will have to spend on your training, you will have to spend on your education for all of this. Okay, नेक्स्ट थिंग, आपको कहाँ खर्चा करना पड़ेगा ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। चलो, नेहा मैम ने पूरा एजुकेशन पे डाल दिया, मतलब फुल एजुकेशन, ये कर लिया वो कर लिया, हर चीज कर ली, हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, खाना नहीं खाती थी, ठीक है, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह नहीं खाती थी, शी डिड नॉट डू खर्चा ऑन हर हेल्थ, ठीक है, वैक्सीन नहीं ली, क्या होने वाला है? पढ़ाते पढ़ाते हो जाएगा। सेम इज गोइंग टू बी विद द लेबर ऑल्सो। लेबर ने अगर एजुकेटेड लेबर है या मैनेजर है, कोई बहुत ही टैलेंटेड सीईओ है, वहां गया और ऐसे फ्लैट हो गया, पसर गया ऑफिस में जाकर, क्या होने वाला है? इज ही ऑफ एनी यूज? उसकी एजुकेशन कहाँ जाएगी? गड्ढे में जाएगी, इफ ही इज नॉट स्पेंडिंग ऑन हिज हेल्थ ऑल्सो, राइट? तो ही हैज टू बी मेंटली एंड फिजिकली फिट ऑल्सो, ताकि ऑफिस तो आ सके, कम छुट्टी लेगा तो कम ज्यादा काम करेगा, ठीक है? तो एक्सपेंडिचर हैज टू बी डन ऑन हेल्थ। तो वी हैव सम टाइप्स ऑफ मेडिसिन यू नीड टू बी अवेयर। पहला है प्रिवेंटिव मेडिसिन। प्रिवेंटिव मेड्स क्या होती हैं? प्रिवेंटिव मेड्स बचाने के लिए, लाइक योर वैक्सीन्स। सेकेंड है क्योरेटिव, अगर बीमार हो गए हैं तो ठीक करने के लिए। थर्ड कम्स योर सोशल मेडिसिन। सोशल मेड्स मतलब एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। स्प्रेडिंग ऑफ योर हेल्थ लिटरेसी इज थ्रू योर सोशल मेडिसिन, ठीक है? दिस इज योर एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ। नेक्स्ट, माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? पीपल गो फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो माइग्रेशन हम दो टाइप से बात कर सकते हैं, लाइक रूरल एरिया से अर्बन एरियाज आ जाना, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज योर माइग्रेशन, ठीक है? जॉब्स के लिए अनएम्प्लॉयड पीपल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज। सेम थिंग, एजुकेटेड अर्बन एरियाज के क्या करते हैं? दे ट्रैवल अब्रॉड, right? They go to other countries, they migrate to another countries in search of better job opportunities, better standard of living, ठीक है? अभी कोई भी माइग्रेशन होगा, देयर हैज टू बी सम कॉस्ट अटैच्ड टू इट। माइग्रेशन ऐसा तो नहीं वहां जाओगे सीधे जॉब मिल जाने वाली है एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड। क्या टाइप के खर्चे होने वाले हैं? व्हाट टाइप ऑफ कॉस्ट आर गोइंग टू बी देयर? एक तो प्लेन वेन से जा रहे हो, ट्रेन से जा रहे हो, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट थिंग क्या होने वाला है? हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग। सी, व्हेन यू आर कमिंग फ्रॉम रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज में हमेशा हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है, ठीक है? तो ये भी हमें क्या करना पड़ेगा? देखना पड़ेगा। we'll have to take up this खर्चा if you want to improve on the job training। सीए कर लिया, एमबीए कर लिया, बट हमें पता नहीं है बैलेंस शीट उस कंपनी की कैसे बनती है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स उस कंपनी के कैसे कीप होते हैं। क्या करना पड़ेगा? यू लाइक व्हेन वी जॉइन वेदांतु या एनी इंस्टीट्यूशन फॉर दैट पर्पस, क्या होता है? हमारा ट्रेनिंग होता है, राइट? ऐसे थोड़ी कि दे देंगे अरे ये ले लो, लैपटॉप ले लो, ऐसे यूज कर लेना, ये टेक्नोलॉजी है। नो, वी नीड टू बी ट्रेन्ड फॉर इट। ऐसे थोड़ी करना पड़ेगा, बिकॉज ट्रेनिंग टाइम इज गोइंग टू डू व्हाट?
ट्रेनिंग टाइम इज गोइंग टू बी लाइक आपकी चीज़ें अच्छी होने वाली है वहाँ पे, है ना, आप ठीक होने वाले हो. तो वर्कर्स कैन बी ट्रेन्ड इन द फर्म or workers can be trained off campus also, can be trained off the campus. ठीक है, just a minute guys. तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी. नेक्स्ट कहाँ पे खर्चा होने वाला है, नेक्स्ट खर्चा is expenditure on information. After your class 12, what are you going to do? You are going to file in some college, find some college. या फिर जॉब के लिए भी क्या होता है, you find in some places जहाँ पर you pay someone, जैसे कोई वैकेंसी होती है पता करने के लिए, some search engines आते हैं, आप क्या करते हो, to get information you spend money on it. ब्रोशर्स खरीदोगे, प्रोस्पेक्टस खरीदोगे आप कॉलेजेस का, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस का, यू आर गोइंग टू स्पेंड सम मनी ऑन इट टू गेट व्हाट, टू गेट सम इंफॉर्मेशन. ठीक है, सो दिस इज योर एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन. So that's all for today guys. I hope you understood the session and कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, do write in the comment box. I am going to be doing it. मतलब हम we'll go through the comment box and solve all your doubts. So आज हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इम्पोर्टेंस देख ली कि क्यों चाहिए ह्यूमन कैपिटल इनोवेशन करने के लिए, टेक्नोलॉजी फिजिकल कैपिटल बनाने के लिए, एंड सोर्सेस क्या हैं आपके ह्यूमन कैपिटल के. आई होम रिमेंबर, ठीक है, आई होम. नेक्स्ट हम करने वाले रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. टू बी कंटिन्यूड गाइज, and you can start your preparation at Vedantu. We have something very special, VSAT. VSAT क्या हो जाता है, VSAT is your वेदांतु का स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट. ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वाई नॉट गिव दिस टेस्ट यार, एक बार टेस्ट देके देखो कितना % आपको गारंटी स्कॉलरशिप मिल जाने वाली है, और बहुत सारा स्कॉलरशिप पूल भी है, तो गो अहेड एक बार ज्वाइन करो. ठीक है, and Vedantu Fest is live, 50% off on all courses. Class 12 term 1 का crash course is on right now. आपको पूरा का पूरा term 1 reduced price में मिल रहा है, 4500 rupees में मिल रहा है. Yes, all the 4 subjects are covered here. पूरे चारों सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन हो जाएगी, एग्जामिनेशन को 1 महीना बचा हुआ है. गो अहेड एंड जॉइन दिस एंड टेक बेनिफिट ऑफ दिस गाइस. सो ग्रेड 12 CBSE कॉमर्स टर्म 1 टर्म 2, ग्रेड 12 टर्म 1 का क्रैश कोर्स. इफ यू वांट टू गेन 100% नॉलेज एंड स्कोर्स 100% मार्क्स, जॉइन वेदांतु. अनलिमिटेड लाइव क्लासेस होंगी, फन और हाई लेवल क्विज क्वेश्चंस होते हैं हमारे सेशंस में. You get to compete with students throughout the world. Interactive replays, live quiz questions, leaderboards, every day ये सारी चीज़ें fun activities होती हैं. You get premium downloadable content and handwritten notes of master teachers as well. In class doubt solving होता है, हम आपको बहुत अच्छे टेस्ट देते हैं, असाइनमेंट्स भी देते हैं साथ में, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज मिलते हैं, फ्री क्रैश कोर्सेज मिलते हैं, बोर्ड एंड कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी होती है. We give you more at less prices, more classes at less prices only at Vedantu. So choose your plan wisely guys. Right now बहुत सारे discount offers चल रहे हैं. Do not forget to apply the coupon code NRPRO for your discount. Link to this will be there in the description box. Right? Pro subscription benefits. 5,000 plus hours of live courses. All the subject matters are covered in great detail with tests and assignments. We teach in English in our classes. 10 plus teachers हैं हमारे पास, 5 plus years experience के साथ. Live doubt solving होती है and you can learn from any device at the safety of your home.
1 month subscription 2610, 12 months 30599, and 24 months if you join in for 11 and 12 it's 42299. Do not forget NRPRO is your coupon code. Maharashtra board students 11th October batches start ho gaye. Go ahead and join these batches. Don't forget to subscribe to our channel everyone. Do like our video and share it with all your friends. Till then, I will see you in the next class. तब तक आपको पता है क्या करना है. You need to stay home, stay safe, and stay healthy. Right? Thank you so much. This is Nia signing off. And happy Dashera, everyone. Thank you so much. Bye bye. Take care.